So today we start our second unit, and the name of unit is Project Plan. Last week we have seen a big PPT of project management, okay, and the all criteria means like that we have clear on that PPT means unit 1, like how to, what is project management, how to create project, what is the cost, how we estimate planning if you are working in, okay, how to make a plan, the format of planning, right? Then some organizational culture we have seen, okay? Lot of formats and lot of risks part we have learned on that project management, schedule, how we make schedule, then in organization projects में क्या होता है, so lot of things, evaluations of project, how we evaluate, how we complete data, the information, daily work you just keep in the worksheets, work chart, and then you evaluate and judge your boss or your HOD is judging the performance, and on that basis they give you promotions and increment. So last unit one, whatever the graphs, how to graph, how to prepare charts, everything we have seen that unit 1. So now today we have seen the project planning. So guys, you know, planning is the most important. Every organization, every project, if you are studying, so planning is important. If you want to go anywhere, planning is important. Okay ना, ऐसे नहीं ना कहीं हम चलो बोले तो चले जाते हैं, planning रहती है, 1 घंटा शेड्यूल है या 2 घंटा शेड्यूल है, तो 1 to what we learn, what we do. Okay, so हम हमारा प्लानिंग क्या करते हैं, आउटकम वाला रखते हैं, रिजल्ट वाला में, तो हमें उसका इनपुट मिलना चाहिए. ऐसे नहीं कि जाके आ गए टाइम पास, नो. यू आर स्टूडेंट, तो ये समझ में आता है कि कौन वर्क कर रहा है, कौन टाइम पास. सो जस्ट कीप इट, एंड हम मतलब ऑलवेज थिंक अबाउट कि यस, ये 1 घंटे में आपने क्या काम किया है, उससे आपको क्या सीखने को मिला है. ओके, सो प्लानिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. और जो प्लानिंग आप कर रहे हो, वट एवर द प्लानिंग, just and analyze it. Yes, whatever you decide, whatever you plan, it will be success. You get input, means what happened if you do perfectly na, so same thing you don't do again and again, means you know that how to do it, and you will doing perfectly. So we have seen some introductions, the project examples, okay, steps of planning. Every time if you are plan step by step, it's really very well. Okay, so here we have seen unit 2, project planning. Have you seen my second slide, project life cycle? Yes, ma'am. Okay, so this is the project life cycle. In first unit we have seen the project is going on. Means first project is complete, after that second project we work, third, fifth, lot of. Okay, so it's a conceptual phrase, means planning phase, execution and implementation phase, closure phase, conceptual phrase. Okay, so पहला क्या है, planning phase. When you get a project, when you hire a new project as a project manager, what do you think first? What are you doing first? You just study that what kind of project you have, what kind of work you have to do it. Now, what things comes in your mind if you get a project? What things come to your mind? Yes, come on, just interact with me. बताइए कि मान लीजिए एज अ न्यू कंपनी ने, एज अ आप फ्रेश है MBA में, आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो गया एंड यू हैव ज्वाइन अ बिग कंपनी एंड यू गेट प्रोजेक्ट मैनेजर, एक प्रोजेक्ट मिल गया एज मैनेजर. सो क्या करेंगे, फर्स्ट प्लानिंग क्या करेंगे, कैसे करेंगे? कम ऑन, एनीवन? नो इशू, जस्ट इंटरैक्ट. गलत हुआ तो मैं हूं यहाँ पे, कम ऑन, सीख.
करिए, आपको आदत होगी, है ना. एंड व्हेन यू आर just going for interview, so you know that what kind of questions they ask, and if you tell them regarding that, how to make a planning, what kind of planning you are doing before starting project, so really beneficial to you. Yes, anyone? Omkar this side. Hello. Yes. I will gather all the resources by their means to control the team. Then I will give them the task as per their specifications, or after that I will tell them some work to do as per their as per their abilities. Okay, anyone? Thank you, Omkar. Anyone? No one want to become a manager? No one want to work in project? Yes. सी, आप फाइनेंस के स्टूडेंट्स हो, अगर आप इंटरेक्ट नहीं हो, आप जस्ट एक डिग्री के लिए स्टडी कर रहे हो, तो मैं तो फिर थ्योरेटिकली बताऊंगी, बट मैं चाहती हूँ कि बच्चों को एक कुछ तो भी बनो आप लाइफ में. सिर्फ पढ़ना है, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकल करोगे तो समझ में आएगा, और प्रैक्टिकल के लिए आपको बोलना पड़ेगा. यस, एनीवन? उस प्रोजेक्ट के लिए कितना मैन पावर हमको चाहिए, उसका बजट कितना होगा, उसका टाइम कितना लगेगा, और उसका ये सब प्लानिंग करेंगे पहले. यस, सी, गुड. बट मेरा क्वेश्चन था कि सबसे पहले आप प्लानिंग क्या करेंगे. जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट के लिए हायर किया जाता है ना, जो भी प्रोजेक्ट हो, तो सबसे पहले आपका काम है कंपनी का स्टडी करो, पुराने प्रोजेक्ट का स्टडी करो कि इसके पहले कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था क्या. जस्ट यू मीट योर बॉस एंड HODs एंड जस्ट रिक्वेस्ट देम कि सर, आई जस्ट रीड द प्रोजेक्ट केस ऑफ लास्ट 2 years और 3 years. ओके, सो प्रोजेक्ट केस में सारी डिटेल्स दी हुई रहती है कि किस तरह से उन्होंने प्रोजेक्ट किया था, कब किया था, कितना कॉस्ट उसमें लगा था, कैसे उन्होंने पैसे बचाए थे और कैसा प्रॉफिट हुआ था. ओके, लोग study is important. Okay, when you are join any company, any organization, or you want to become a project manager, so before, and you are a fresher, मैंने पहले ही बोला था कि आप फ्रेशर हो. एज अ फ्रेशर आपको तो कुछ पता ही नहीं है ना, बट उसे पता करने के लिए आपको लर्न करना है, क्योंकि आप भी चाह रहे हो कि आपका प्रोजेक्ट अच्छा हो, आपको अप्रिसिएशन मिले, आपको प्रमोशन मिले, तो आप तो यही चाहोगे, बिकॉज यंग मतलब ब्लड है आपका, तो लगता है ना कि यंगस्टर को, नहीं यार, मुझे मैनेजर मिला है पोस्ट, तो मेरा काम अच्छा होना चाहिए, है ना. तो ऑब्वियसली कंपनीज हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू, एंड फॉर दैट यू रीड द केस लास्ट 2 years. Cost ये voice is breaking. Hello, am I audible? Now am I audible? Could you please repeat? Your voice is breaking, ma'am. 1 second, huh? Give me a time. Now am I audible? Yes. Yes, ma'am, you are audible, but your voice is a little bit low. Okay. So yes. So आप जब भी कभी किसी कंपनी में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर ज्वाइन होते हो, तो सबसे पहले वहां पे आप लास्ट 2-3 years के प्रोजेक्ट के केस रीड करिए. उन्हें बोलिए कि अगर वो डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट कॉस्ट पे होता है, अगर आपका प्रोजेक्ट 3 लाख का, 5 लाख का या 10 लाख का है, तो रीड इट दैट काइंड ऑफ केसेस. लगा, कौन सी मशीन्स लगी थी,
वो आज की डेट में अवेलेबल है क्या, आपका जो प्रोजेक्ट है उस चीज के लिए एक लिस्ट बनानी है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आप नोट डाउन कर सकते हैं एज अ बिकम अ प्रोजेक्ट के लिए, या फिर आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर हायर होते हैं तो आपको सबसे पहले स्टडी करना है लास्ट 2-3 ईयर के प्रोजेक्ट के, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट। देन आपको उस प्रोजेक्ट को रीड करने के बाद जब आप प्रोजेक्ट रीड करोगे तो उस टाइम आपको नोट डाउन करना है कि ये प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें लगी थी, क्या गलतियां हुई थी, सब रहता है केस स्टडीज में। ओके, तो वो सारी चीजों को नोट डाउन करिए। देन आफ्टर अ वीक के या आफ्टर 2-3 डेज आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिसीजन लीजिए कि यस मैंने ये प्रोजेक्ट पढ़ा था तो उसमें इतना इतना लगा था तो ये भी मुझे, एंड सिर्फ थिंक मत करिए, तो आप अपनी शीट में सारी चीजें मेंशन करिए। ठीक है, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर यू वांट टू बिकम अ MIS, यू वांट टू बिकम अ बजट, you want to you want to prepare, extremely sorry, so you want to prepare budget, you want to prepare MIS, you want to prepare cash flow, everything. okay, जब आप ओल्ड प्रोजेक्ट रीड करेंगे तो उसमें आपको एक आइडिया आ जाएगा कि किस एक्सपेंसेस का शीट कैसे बना था, बैलेंस शीट पे उसका इम्पैक्ट क्या आया था, क्या नाम से एंट्री हुई थी, क्या नाम से वो आइटम को हाईलाइट किया था, कितना टैक्स हुआ था, एवरीथिंग मेंशन इन प्रोजेक्ट। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं कंपनीज के। ओके, अगर आप आजकल आजकल सारा वेबसाइट पे है, अभी भी आप किसी वेबसाइट में टाटा, इम्प्रो, जितने भी कंपनीज है, विप्रो या मल्टीनेशनल कंपनीज है, उनके वेबसाइट पे जाके रिपोर्ट पढ़िए कंपनीज के, सारी रिपोर्ट्स वहां पे रहती है, पीडीएफ्स, उसे निकाल के पढ़िए कि क्या क्या उन्होंने प्लानिंग किया था। ठीक है, आफ्टर दैट यू मेक अ बजट ऑफ योर प्रोजेक्ट, उसका एग्रीमेंट पढ़िए प्रोजेक्ट का कि कब तक उसका टाइटल है, कब वो स्टार्ट करना है और कब वो खत्म करना है। उस हिसाब से आपको ईयर बाय ईयर, 3 साल का है तो 3 ईयर के डिफरेंट डिफरेंट प्लान बनाने होंगे, प्रेडिक्शंस, एजम्पशंस बेसिस पे। ठीक है, तो वो प्लानिंग को फिर आपको मैनेजमेंट के सामने रखना है, और मैनेजमेंट अगर अप्रूव करती है तो उसी प्लानिंग से आपको पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। ठीक है, आपका प्लानिंग अप्रूव हो जाता है कॉस्ट का। आफ्टर दैट एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन फेज। ओके, आपने प्लानिंग बना लिया, MIS, बजट, एवरीथिंग बना के दे दिया, अप्रूवल हो गया मैनेजमेंट का, फिर आपने एग्जीक्यूशन करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है। अब एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन में क्या आएगा, एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन में क्या आएगा, ओके, एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन में फिर आप मैन पावर जितना भी आपने प्रोजेक्ट में दिखाया था, मतलब बजट में दिखाया है, उस हिसाब से आप मैन पावर हायर करेंगे, मशीनरीज हायर करेंगे, जो जो भी उस प्रोजेक्ट के लिए लग रहा है ना, मशीनरीज एंड ऑल मैन पावर, स्टेशनरी है, देन कुछ लेबर्स है ना, ये सारी चीजें आप क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करना चालू करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन चालू कर देंगे कि स्लोली स्लोली। ठीक है, एंड देन उसी रेगुलर इससे के बाद एक दिन वो क्लोजर होगा, मतलब ऑन टाइम पे ही। आप तो ट्राई करेंगे कि ये टाइम पे ही होना है, उसके लिए आपको रेगुलर डेली वर्क, डेली सारी चीजें, रोज का MIS, रोज का कैश फ्लो, एवरीथिंग बनाना है। देन क्लोज एंड कंसेप्चुअल फेज। सो पहला तो कंसेप्चुअल फेज ही आता है कि ट्राई करो, उसको समझो, कहाँ पे प्रोजेक्ट हो रहा है, पीपल कैसे, कौन से लोगों के साथ आपको काम करना है ना। प्रोजेक्ट में जरूरी नहीं है एक ही बंदा होता है जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस होता है, वो 10 साल से प्रोजेक्ट में काम करता है, आप तो फ्रेशर हो, है ना। तो सारी एबिलिटीज, सारा प्लानिंग आपको आना चाहिए, सारी चीजें आप में होनी चाहिए, तभी आप एक, मतलब उस प्रोजेक्ट को कंप्लीशन होने के बाद विद प्रॉफिट, तभी आप एक अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर कहलाएंगे। और उसके बाद जितने भी आपके पास प्रोजेक्ट आएंगे वो आप ही के पास आएंगे, बिकॉज कहाँ पे आपने कॉस्ट रिडक्शन किया है, कहाँ पे निगोशिएशन किया है ना, ये सारी चीजें आपको करनी है। सो दैट इज द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। ये कंटिन्यूअसली चलेंगे, कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली, एक खत्म, दूसरा, दूसरा खत्म, तीसरा। डेफिनेटली इफ यू फिनिश्ड योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम, सो यू मोटिवेटेड, मैनेजमेंट अप्रिशिएट, एंड आफ्टर दैट सेकंड प्रोजेक्ट यू डिसाइड कि यस इस बार मैं ये भी उससे भी अच्छा करूंगा, पहले प्रोजेक्ट से भी ज्यादा बढ़िया करूंगा। ठीक है, सो ऑल गाइज, और अगर प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है तो डेफिनेटली आपको एडवांस एक्सेल आना चाहिए। आई एम रिपीटिंग सेम वर्ड अगेन एंड अगेन एवरी क्लास, advanced Excel is a must. Okay, next.
What is project planning? Project planning is a form of operational planning whereby the consecutive steps to implement the project activities are carefully mapped out. बहुत carefully करनी होती है सारी चीजें. Okay, so based on analysis of relevant information, prediction. अभी बहुत बार हम बोलते हैं कि it's a predicted. Predictions सभी जगह सही नहीं होता है ना, बट हमें जो भी प्रोजेक्ट पर सारी चीजें जो करनी होती है प्रोजेक्ट में वो प्रेडिक्टेबल होती है, लेकिन उस प्रेडिक्शंस को हमें रियलिटी में कन्वर्ट करना पड़ता है. तभी तो हम सक्सेसफुल बनेंगे, तभी तो हमें पता होगा कि कॉस्ट क्या होती है, कैसे उसे मैनेज करना है, कैसे उसको रियल आज की डेट में बिठाना है. फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, लास्ट टाइम मैंने बोला था कि प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि बहुत काम हो गया, कभी हुआ ही नहीं, और उसका हमें रिकवरी करना होता है. जैसे इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त रेनी सीजन होता है, तो काम बहुत कम होता है, मशीनरीज नहीं आती बिकॉज ऑफ रेनी सीजन, मटेरियल ऑन टाइम नहीं पहुंचता बिकॉज ऑफ रेनी सीजन, सम काइंड ऑफ सम थिंग्स आर लेट. तो वो जो गैप होता है वो हमें फुलफिल करना होता है, डे नाइट काम करके, वॉट एवर द task we need to fulfill. So that is the, and whatever the information, मतलब जो भी डाटा आप रोज सेव कर रहे हो, जो भी आ रहा है उसे आपको अकाउंट्स में, बुक्स में मेंटेन भी करना है, शीट्स में मेंटेन भी करना है, या फिर आपके पास जो भी शीट्स है डेली बेसिस पे जो भी आप बना रहे हो MIS, उसमें भी आपको मेंशन करना है, लिंक करना है वो सारी चीजें, जो आपने डाटा दिया है वो सही है कि नहीं. अकाउंट्स में जो डाटा आपने दिया है वो मैच होना चाहिए, आपका और उधर का सेम आना चाहिए. ओके, यहाँ पे दिया है देखिए, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड लिंक टू द प्रोग्राम इन विच द प्रोजेक्ट टेक प्लेस एंड टू विच इट शुड कंट्रीब्यूट. ठीक है, सो एवरी फिगर्स, एवरी अमाउंट विल बी लिंक टू ईच अदर. ओके, नाउ क्योंकि उसी के बेस पे आपका प्रॉफिट निकलेगा, एक जगह दूसरी जगह रहेगा, दूसरा अमाउंट रहेगा, तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. So essentially, project planning involves establishing the scope, aims and objective of project. Yes, so जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे आप SIP में ऑब्जेक्टिव लिखते हो, प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव लिखते हो, तो यू व्हाट यू लर्न फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव. योर ऑब्जेक्टिव है यही रहना चाहिए कि टू फिनिश प्रोजेक्ट ऑन टाइम. ओके, द रिलेवेंट व्हाट वी से मटेरियल, व्हाटएवर जो भी लग रहा है आपको, उसको टाइम पे करना है, सपोर्ट करना है अपने अंडर जो भी पर्सन है, बिकॉज यू नीड टू फुलफिल योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम. सो यू ऑलवेज मोटिवेट योर स्टाफ, यू ऑलवेज सपोर्ट देम, व्हाटएवर, एंड if all are supported, definitely you will fulfill your work on time. So the way in which the project will be performed, the roles and responsibilities of those involved, and the time and cost estimate. One thing you just keep in your mind, that project management means project work is a team work. Okay, if you are decide कि मैं अकेले करूंगा, तो ये अकेले नहीं होगा, it's a project work, क्योंकि उसमें मैन पावर लगेगा, सबका टाइम इन्वॉल्वमेंट है, सबका एफर्ट्स है, सब एफिशिएंट पीपल आर वर्किंग देयर. सो एंड देयरफॉर यू हैव टू फिनिश ऑन टाइम. कभी कभी आपको ज्यादा भी काम करना पड़ सकता है, ओके, बिकॉज ऑफ टीम वर्क. ठीक है, तो टीम वर्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, यू आर अ लीडर ऑफ योर प्रोजेक्ट एंड यू हैव अ गुड क्वालिटीज जो आपने लीडरशिप में पढ़ी है. ओके, now planning normally answer the questions like what, how, who and where. जब आप प्लानिंग करोगे या फिर लर्न करोगे, पढ़ोगे पुरानी केसेस, so that time the question comes in your mind like what is happened, why it is, how much time we have spent here, who is doing this, whose responsibility is, and when it will complete. So that kind of questions comes in your mind regularly. Got it? So planning में ये questions आते हैं, कब होगा, when you in front of your management, so they will ask, कब करोगे, डेडलाइन दो, कब तक कंप्लीट होगा, मुझे डेडलाइन चाहिए. आप कहीं जाओ, आपको आपके एक्सक्यूज नहीं सुनेंगे. आपने बोला कि नहीं मुझे ऐसा था, मेरी गाड़ी पंचर हो गई, या फिर मेरा, डोंट लिसन योर एक्सक्यूज. सैलरी दे रहे हैं तो यू हैव टू फुलफिल योर वर्क ऑन टाइम. आपको डेडलाइन, उसी डेडलाइन में आपको कंप्लीट करना है. इफ यू
गिव सम काइंड ऑफ मतलब एक्सक्यूजेस, तो वो सोचते हैं यू आर नॉट एबल टू फॉर दैट प्रोजेक्ट. सो टाइम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. ओके, that is planning is simply how to seek the balance between project constraint to achieve set goal. इसलिए हम प्लानिंग करते हैं क्योंकि whatever we plan हमें वो कंप्लीट करना है और हमारा गोल अचीव करना है. अगर आप डेली, प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा है, अगर आप डेली का काम टाइम पे करेंगे ना, completed on time, so definitely you will achieve your daily goals, है ना. प्रोजेक्ट में आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट को 3 साल में कंप्लीट करना है, ये तो आपका बहुत बड़ा गोल है, लेकिन वो 3 साल में कंप्लीट करने के लिए आपको रोज के गोल जो आप बना रहे हो प्रोजेक्ट का, वो फुलफिल करना जरूरी है. गॉट इट? एनीवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? ओके, सो इनपुट इन प्रोजेक्ट प्लानिंग, व्हाट इट इज? प्रोजेक्ट चार्टर, कंसेप्ट प्रपोजल, जो भी प्रपोजल होता है, एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसे अच्छे से पढ़िए, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़िए कि ये प्रोजेक्ट आपको कैसा मिला है, इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, हाउ मच अमाउंट वी इन्वेस्ट ऑन दैट प्रोजेक्ट, क्योंकि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में तो पहले इन्वेस्ट ही करना पड़ता है, EMI, FDs और सम DDs एंड ऑल EMDs. गॉट इट? सो पहले तो आप इसका ये इनपुट्स इन प्रोजेक्ट प्लानिंग की इसका स्टडी करिए कि ये जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं इसमें क्या क्या लगने वाला है, क्या है, उसकी सारी कंसेप्ट पहले क्लियर करिए. कंसेप्चुअल प्रपोजल होता है ना, वो वहां से आता है, उस हिसाब से आप पहले उसका स्टडी करिए वेरी वेल. देन प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग, उसके बाद आप प्रोजेक्ट प्रोसेस करना चालू करिए. ठीक है, सो प्रोसेस असेसमेंट, prioritization, design of plan using various tools and technique. उसके बाद आप प्रायोरिटी दीजिए, पहले किसे करना है ना, जैसे वर्क स्टार्ट करना है, असेसमेंट करना है, असेसमेंट के लिए आपको सबसे पहले शीट्स बनानी होंगी, क्या क्या लगेगा. सेकंड आएगा क्राइटेरिया आपका, प्रायोरिटी किसको देनी है, कौन सा वर्क पहले स्टार्ट करना है, लेबर वर्क, तो सबसे पहले प्रायोरिटी उसे दीजिए, राइट. उसके बाद डिजाइन ऑफ प्लान यूजिंग वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स, whatever the design of your project, what kind of tools you required. okay, फिर उसका आप स्टडी करिए, राइट. मतलब उसी प्रकार से आपको जाना है. ये आपका प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग हो गया. आउटपुट ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग, आउटपुट रिजल्ट्स में क्या आएगा? प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्ट प्लान ऑफ एक्शन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, इम्प्लीमेंटेशन प्लान, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन प्लान्स. ठीक है, सो आउटपुट ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग में आपने जो आज काम किया है उसका डाटा आ गया क्या, उसका शीट बन गया क्या, कितने लोग वर्क पे आए थे, कितने लोगों ने काम किया, आज 100 प्रोडक्शन का ये था, हो गया क्या, पूरे 100 प्रोडक्ट निकल के सील पैकिंग सब हो गए क्या. एवरीथिंग आर कम्स इन आउटपुट ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग. आफ्टर द अप्रूवल इट विल गो आउटसाइड ऑफ द मार्केट. Got it? तो हर प्रोजेक्ट में आपको एवरी डे के बेसिस पे प्लान करना है, उसे फुलफिल करना है. सो कॉमनली यूज टूल्स फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग, जो हमने गंट चार्ट पढ़ा था, है ना, इसके पहले वाले यूनिट में देखा था हमने कितने सारे बनाने हैं. प्रॉब्लम्स, ट्री एनालिसिस, हमको ट्री एनालिसिस करना आना चाहिए कि प्रोजेक्ट मैनेजर उसके अंडर कितने कितने पीपल है, कौन से पीपल को क्या क्या काम दिया हुआ है. ये हमने पिछले स्लाइड में ही पूरे मैप, पूरे डिजाइन, पूरे फॉर्मेट्स देख लिए हैं. देखे है कि नहीं? यस और नो? डू यू अंडरस्टैंड फर्स्ट यूनिट? यस, करेक्ट. सॉर्ट एनालिसिस, है ना, ये हम पहले ही सीख चुके हैं. सॉर्ट एनालिसिस क्या होता है? एनीवन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉर्ट? इलैबोरेट प्लीज. SWOT. स्ट्रेंथ, वीकनेस, yes, come on, opportunities, and threat. T for Threats. yes, correct. So you have to analyze SWOT कि yes, क्या स्ट्रेंथ है, क्या है प्रोजेक्ट में, क्या जा रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज कितना है उसमें, थ्रेट्स कितने हैं,
एवरी डे यू हैव टू एनालिसिस एंड ओनली। आजकल कंपनीज में क्यों बोलते हैं कि हमें एफिशिएंट पीपल चाहिए? बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन एंड स्मार्ट वर्क। एवरीवन नीड स्मार्ट वर्क बिकॉज इतना बड़ा इंफॉर्मेशन होता है, इतने बड़े बड़े फिगर्स होते हैं, सो दे वांट फाइनेंस पीपल। क्योंकि फाइनेंस पीपल को उनका मतलब एक ऑब्जर्वेशन रहता है कि फाइनेंस पीपल नोज हाउ टू फाइंड द फिगर। ओके, सो देयरफॉर आई एम टेलिंग यू दैट एक्सेल इज इंपॉर्टेंट। सो एडवांस एक्सेल, और जो बंदे का एडवांस एक्सेल अच्छा होता है वो कहीं भी काम कर सकता है, एनी वेयर। ट्रीज बनाना, शॉर्ट एनालिसिस करना, फिगर टू फिगर मैच करना, एवरीथिंग। ओके, सो लॉजिकल फ्रेमवर्क एनालिसिस, लॉजिस्टिक में जो काम कर रहे हैं उनका फ्रेमवर्क एनालिसिस कैसा है? क्योंकि मटेरियल तो 24 आवर में कभी भी आ सकता है, वो आता है तब चेक होता है कि नहीं, उसका रिक्वायरमेंट क्या है, उसका शीट क्या है, जिन्होंने मटेरियल लिया है उसका साइन है कि नहीं, सुपरवाइजर का, जिन्होंने दिया उसका है कि नहीं, रिसिप्ट्स बने कि नहीं, बिल बने कि नहीं, एवरीथिंग लॉजिकल फ्रेमवर्क एनालिसिस में आता है, सारी चीजें, क्योंकि बहुत सारी चीजें लॉजिकली होती है ना। सो दैट ऑल्सो वी हैव टू चेक। प्रोजेक्ट मैनेजिंग सॉफ्टवेयर, आप जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उसका सॉफ्टवेयर आपके पास है कि नहीं, आप सॉफ्टवेयर में काम है कि नहीं कर रहे हैं कि नहीं, सारा डाटा उसमें अपडेट हो रहा है कि नहीं, कितने बजे वो आया था, जैसे आप टोल नाका पे जाते हो तो उनका कैसा है, एकदम अपडेटेड सॉफ्टवेयर, कितनी गाड़ियां कब आई क्या गई, एकदम फटाफट होता है। और रिपोर्ट भी डे का डेली होता है, डेली रिकंसिलेशन होते हैं उनके। ओके, एटीएम्स का भी वैसे ही है, डेली सब होता है, तुरंत आपको मैसेज आ जाता है। तो आप सोचिए कि मशीन जब इतना फास्ट कर रही है तो आपको भी मशीन के साथ काम करना है, एकदम क्लियर, एकदम फास्ट। गॉट इट? सो मैनेजिंग सॉफ्टवेयर में मतलब आप खुद का सॉफ्टवेयर भी क्रिएट कर सकते हो एक्सेल में, नो इश्यू। आपने अगर उस प्रोजेक्ट का ये बना लिया, अगर आप वाकई में हैं तो आप वैसा बना सकते हैं, छोटे प्रोजेक्ट का बनाइए, 1 लाख का 2 लाख का, कि आपको उसका क्लैरिटी हो, आपको उसका आइडियाज है क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे कैसे आप काम करोगे, किन किन लोगों के साथ काम करोगे, है ना। तो ये भी जरूरी है, प्रोजेक्ट मैनेजिंग सॉफ्टवेयर। देन प्रोसीजर, प्रोसीजर, है ना। जो प्रोसीजर आपने डिसाइड करी थी बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट, सेम इक्विवेलेंट है कि नहीं, सेम वैसे ही हो रही कि नहीं, कि कुछ चेंजेस करने पड़ रहे हैं, या उसमें जो आपने डिसाइड किया था, आपने सोचा था कि नहीं सबसे पहले जो भी मटेरियल आएगा उसका एंट्री होगा, उसके बाद उसका चेकिंग होगा, अप्रूवल होगा, बाद में उसका प्रोसेस होगा, लेकिन एक आध दिन वो प्रोसेस गलत हो गया, पहले उसका प्रोसेस गया और वो ध्यान में ही नहीं रह गया। सो नुकसान आपको है, अगर आपको डैमेज, डिफेक्टिव या कुछ भी ऐसी चीज अंदर आती है तो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज यू आर नॉट चेकिंग। सो ऑलवेज प्रोसीड, जो भी प्रोसेस है उस हिसाब से ही आपको चलना है प्रोजेक्ट में। ओके, सो इंटरवर्शन इंटरवेंशन मैपिंग फॉर हेल्थ प्रमोशन प्रोजेक्ट्स, है ना। अगर हेल्थ के रिगार्डिंग कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसमें इंटरवेंशन मैपिंग होनी चाहिए, मतलब पहले चेकिंग होता है क्या कुछ है क्या, और आफ्टर दैट वो परमिशन देते हैं टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट। जैसे लेबर है ना, अगर लेबर हमें लग रहा है तो वो लेबर का चेकिंग होगा, क्योंकि उसका इंश्योरेंस बनेगा। अगर रिस्क वर्क है ना, रिस्क का काम है, जैसे नीचे जाना ऊपर आना, मशीन भी हो सकता है, उसके साथ उसका हाथ जा सकता है, पैर जा सकता है, मशीन चलाना नॉट अ जोक। तो उसका पहले मैपिंग, उसका हेल्थ चेकअप, उसका इंश्योरेंस वगैरह सब बनना होता है, आफ्टर दैट वो प्रोजेक्ट में काम कर सकता है ना। नेक्स्ट, प्लानिंग स्टेप्स। ठीक है, अब ये प्लानिंग की स्टेप्स क्या होती है? असेसमेंट ऑफ सिचुएशन। असेसमेंट ऑफ सिचुएशन का मतलब है कि सिचुएशन को पहले असेस करिए, पहले स्टडी करिए कि जिस सिचुएशन में ये प्रोजेक्ट आपको मिला है और अभी आपके पास इतना टाइम है, तो उस हिसाब से उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको पहले स्टडी करना है, असेस करना है, एनालाइज करना है। आइडेंटिफिकेशन एंड प्रायोरिटाइजेशन, उसके बाद आइडेंटिफाई करना है, डिसाइड करना है कि अबे हमें कौन सा काम करना है और किस चीज को पहले प्रायोरिटी देनी है। प्रोजेक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट का पूरा डिजाइन बनाना है, और डिजाइन आने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको डेवलप करना है, उसको स्टार्ट करना है ना। जैसे अभी ये मेट्रो के वर्क वगैरह चल रहे हैं, तो कब से मतलब प्लानिंग था कि बनाना है, लेकिन कई जगह वो चल ही रहा है ड्यू टू कुछ लैक ऑफ थिंग्स,
दे आर डिलेड बट इट्स गोइंग ऑन, इट्स अ प्रोजेक्ट वर्क। अगर आप में से कोई कर रहा हो या आपका फ्रेंड वगैरह, तो उनसे पूछिए उसका प्रोसेस क्या हो, नहीं काम चल रहा है ना। सो प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। जो भी प्लानिंग आपने किया है उस हिसाब से वर्क हो रहा है कि नहीं, डेवलप हो रहा है कि नहीं, रोज मॉनिटरिंग हो रहा है, रोज इवैल्यूएशन हो रहा है। मतलब जो भी फीडबैक आपको वर्कर से, आपके मैनेजमेंट, आपके टीम से आ रहा है, वो आपके सॉफ्टवेयर में, आपके बुक्स में नोट हो रहा है कि नहीं। ये भी प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड, मतलब जो प्लानिंग के हिसाब से आपने खर्चे डिसाइड किए थे, कैश डिसाइड की थी, सेल्स डिसाइड किया था, वो सब हो रहा है कि नहीं। दैट इज कम्स इन पॉइंट नंबर 4, दैट 4 प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। नेक्स्ट, प्रपोजल डेवलपमेंट, है ना। जो भी प्रपोजल आपको मिला है, आपको तो 1 महीने में पता चल जाएगा कि ये जो वो प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट का जो प्रपोजल है वो डेवलपमेंट के इसमें है कि नहीं, उसका इम्प्रूव है कि नहीं, राइट। वो ऑटोमेटिकली आपको, सो दैट इज द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। इस तरह से मतलब जो प्लान आपने किया था वो डेवलप हो रहा है, वो वर्क कर रहा है ना, उसके इनपुट अच्छे आ रहे हैं, दैट इज प्रपोजल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, असेसमेंट ऑफ सिचुएशन में क्या क्या आएगा। अभी हम प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें जो दिया हुआ है स्टेक होल्डर एनालिसिस, व्हाट इट इज, प्रोजेक्ट टीम, जो मैंने पहले ही बताया, साइंटिफिक कम्युनिटी, लीडर्स, कम्युनिटी पीपल, बेनिफिशियरीज एंड प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। सबसे पहले तो ये आपका रेडी होना चाहिए, है ना। मतलब प्रोजेक्ट की टीम कौन सी है, कितने लोग उसमें काम कर रहे हैं, साइंटिफिक कम्युनिटी मतलब जो भी टेक्निकल वर्क है ना, टेक्निकल, उसमें कितने लोग काम करने वाले हैं, लीडर्स कौन रहने वाला है, पीपल जो अदर कम्युनिटी के लेबर क्लास है वो कितना रहने वाला है काम करने के लिए, बेनिफिशियरीज कितने होने वाले हैं, हमें उस प्रोजेक्ट को प्रॉफिट दिलाने के लिए कौन से ऐसे पीपल है जो काम कर रहे हैं, एंड प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। एंड ऑन दैट बेसिस पे, मतलब ये प्रोजेक्ट टीम, साइंटिफिक कम्युनिटी, लीडर कम्युनिटी एंड पीपल बेनिफिशियरी, ऑन दैट बेसिस पे हमें क्या बनाना है, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाना है। हमने देखा था ना लास्ट टाइम प्रोजेक्ट पीपीटी में कि टीम के हिसाब से उन्होंने चार्ट बताया था, टीम 1, टीम 2, टीम 3, टीम 4, टीम 5, और हर टीम में उसका लीडर था, उसका मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर था, उसके अंडर लोग थे काम करने वाले, अकाउंट डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, एवरी जो भी है। गॉट इट, देखा था ना हमने कि नहीं देखा था? Yes, ma'am. करेक्ट। नाउ कंस्ट्रक्ट, सॉरी, सेकेंड इज स्टडी ऑफ लीगल फ्रेमवर्क्स। कोई भी प्रोजेक्ट में काम करते हो तो उसका क्राइटेरिया, एथिक्स होते हैं, है ना, तो उसे पढ़िए कि क्या है इसका क्राइटेरिया, कौन से क्लॉज के अंदर कौन सा प्रोजेक्ट हमें कंप्लीट करना है, और डेडलाइन क्या है, टैक्स के क्या रेट्स है ना, लीगली हमें क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं। जैसे अगर आपके पास लेबर है तो लेबर पॉलिसी, आपको गवर्नमेंट की जो भी लेबर पॉलिसी है वो आपको लेनी होगी, उनकी लीव्स, उनका salary, unka incentives and all. You should follow this legal policy. You should follow legal policy for employee. You pay tax on time with advance tax. That is also legal policy. If you don't pay, तो project का जो cost है उससे ज़्यादा वहाँ पे pay करना होगा. So all deadlines you follow as per legal rules. सारे legals में ही आएंगे. ठीक है, तो स्टडी ऑफ लीगल फ्रेमवर्क, अगर आपने कुछ हो गया समथिंग लाइक दैट कि एखादा वर्कर जो होता है ना, कभी काम डेड हो जाती है कुछ भी, तो उसका पॉलिसी आपके पास होना चाहिए। वो भी सारी डेडलाइंस आपको फॉलो करनी है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है जिनका 6 महीने का 1 साल का प्रोजेक्ट होता है और उसका उनका इंश्योरेंस होता है। तो अगर उस वर्कर को या लेबर को कुछ हो जाता है तो उसका पॉलिसी उसको वो रिफंडेबल मिलना चाहिए, क्योंकि लेबर यूनियन होती है। तो ये सारा स्टडी, ये सारा फ्रेमवर्क आपको स्टडी करना है बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट। सेकंड, कंस्ट्रक्ट फ्रेमवर्क फॉर सिचुएशन एनालिसिस। एवरी शीट्स, एवरी वर्क के आगे हमें दोनों वे से सोचना है। ऑलवेज 2 पॉइंट से हमें सोचना है कि मैं ये काम स्टार्ट कर रहा हूं, अगर आज ये नहीं हुआ तो क्या करना है। दो आपके पास ऑलवेज आउटपुट सॉल्यूशंस होने चाहिए।
है ना, आपके पास ऑलवेज सोल्यूशन होना चाहिए। कंस्ट्रक्ट फ्रेमवर्क फॉर सिचुएशन एनालिसिस, जैसा भी सिचुएशन हो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपके पास वैसा फ्रेमवर्क भी होना चाहिए, क्योंकि आपको मैनेजमेंट को जवाब देना है। मैनेजमेंट ने बोला कि नहीं आज ये क्यों नहीं हुआ, तो ये काम तो मेरा तो आज नुकसान हुआ, मैनेजमेंट तो यही बोला यार रोज का मेरा 1 करोड़ का पैसा आता है, आज तुम्हारी वजह से मेरा 50 है, ये कैसे तुम मर के निकालोगे, कैसे निकालोगे। वो तो आपको बोलेंगे मैं तुम्हारी सैलरी काटूंगा या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दूंगा, वॉट एवर। उसे तो रिकवर चाहिए, उसे तो रोज 1 करोड़ का पैसा देखने की आदत लग गई है। तो फिर आपके पास वो भी प्लान रेडी होना चाहिए कि अगर मेरा नुकसान हो जाता है या कुछ हो जाता है तो उसे मैं कैसे रिकवर करूंगा, क्योंकि इसमें तो आपकी भी गलती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप काम कर रहे हैं, मशीन ऑटोमेटिक बंद हो गई, तो इसमें आपका क्या है, लेकिन आपके पास उसका सॉल्यूशन होना चाहिए कि इन दैट केस द थिंग इज हैपेंड, व्हाट एवर द सॉल्यूशन यू हैव। या तो आपके पास दूसरी मशीन होनी चाहिए, या तो आपके पास एक्सपर्ट होना चाहिए कि वो बंदा आके 1 घंटे में आधे घंटे में वो मशीन चालू करके दे, या तो आपके पास ऐसे वर्कर होने चाहिए जो डे नाइट में काम करके वो रिकवर कर सके, या तो आपके पास ऐसी टीम होनी चाहिए। Got it? क्योंकि प्रोजेक्ट के लिए टाइमलाइन तो कम ही है ना, आपको तो वो टाइम पे ही करना है। जस्ट कीप इन योर माइंड कि एवरी प्रोजेक्ट कंप्लीट ऑन टाइम। सो एनालिसिस स्टडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, right? Now baseline information collection and analysis, it's a secondary data review survey and other formal and informational sources। ये तो आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। जैसे अगर कोई लेबर की रिक्वायरमेंट चाहिए तो आप कंसल्टेंसी को हायर करेंगे, वो आपको लेबर मिल जाए, लेबर भेज देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई मशीनरीज चाहिए, आपने कांटेक्ट कर लिया, ऑटोमेटिक आपके पास कोटेशन एंड ऑल आ गया, तो कुछ कुछ जो डाटा आपको लगने वाला है, इंफॉर्मेशन, वो आपको इजीली मिल जाएगा। लेकिन जो पहला है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्रिएट करना, टीम डिसाइड करना, असाइनमेंट्स देना, कंप्लीशन करना, इंफॉर्मेशन करेक्ट इंफॉर्मेशन फिट करना है, फीडबैक लेना। ओके, सो दैट इज द, और बेसलाइन इंफॉर्मेशन के लिए तो कोई भी हेल्प करता ही है, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल वर्किंग आर ओल्ड प्रोजेक्ट, सो दे हैव एन एक्सपीरियंस हाउ टू स्टार्ट इट। एंड बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं 15 साल 10 साल का एक्सपीरियंस, उनको अच्छा पता होता है कि ये सिचुएशन में उन्होंने लास्ट कंपनी में क्या किया था। ओके, सो ऑलवेज एफिशिएंट पीपल आर नीड टू वर्क एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, सो यू मेक योरसेल्फ वेरी efficient. Okay, so next है identification and prioritization. So how we decide it? Two components, it's a problem identification and prioritization. सबसे पहले तो आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें। जैसे मशीन बंद हो गई है फैक्ट्री में अचानक, मतलब 5 बजे तक आपको सारा मटेरियल रेडी करके देना था 500 प्रोडक्ट का, लेकिन 12 बजे ही आपकी मशीन बंद हो गई है। अब ये प्रॉब्लम हो गया है, सारे लोग बैठे हैं, आपके पास कोई एक्सपर्ट नहीं है, दूसरी मशीन भी नहीं है क्योंकि वो आपने अभी अभी इंस्टॉल की थी, बट उसका एक पार्ट चलने से या कुछ होने से, और आपके पास टेक्नीशियन भी नहीं है उस मशीन का मतलब रिपेयर करने वाला। तो आपके पास सॉल्यूशंस होने चाहिए। और अभी आपको सोचना है कि मतलब टाइम को तो कम है, 5 बजे तक आपको 500 देना है, आपके पास दूसरी मशीन नहीं है, इट्स अ बिग प्रॉब्लम। यू डोंट नीड टू डिस्कस इट, यू हैव टू सॉर्ट आउट इट कि कैसे उसे स्टार्ट करना है मशीन को। तो जितने भी टेक्निक्स होंगे, जितने भी टेक्नीशियंस होंगे, आप उनको फटाफट फटाफट कॉल करेंगे, उनको पूछेंगे व्हाट इज द प्रॉब्लम एग्जैक्टली हैपेंड ऑन दैट मशीन। यही आपका रहेगा कि कैसे आप 1 घंटे में उसे सॉर्ट आउट करते हो, उसे आप प्रायोरिटी देंगे। क्योंकि मशीन चालू नहीं हुई तो आपका प्रोडक्ट नहीं होगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते सामने वाले को यार मेरी मशीन खराब हो गई है तो आज मैं तुझे प्रोडक्ट नहीं दे सकता, नेवर। मैनेजमेंट तो बोलेगा कि बेटा चल रुक जा। गॉट इट? सो यू हैव टू सॉर्ट आउट। ये आपको कब सोचना है? जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तभी आपको सोचना है कि मेरे पास एक टेक्नीशियन होना चाहिए, क्योंकि ये मशीन बाहर से आई है, इस मशीन के बारे में कोई नहीं जानता, इस मशीन को जानने वाला बंदा मेरे पास चाहिए। ठीक है, अगर वो छुट्टी पे जाता है तो आपको उसे इंसिस्ट करके बुलाना है कि भाई तू आ, अभी के अभी मशीन खराब हो गई है, अगर चालू नहीं हुआ तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। On that time you hire a person who have a good knowledge to start the machine. Okay, so that is the main problem and you have to identify and start it on time. Identification and prioritization of strategies. जो भी आपने आज की स्ट्रेटेजीज बनाई है, प्लानिंग बनाया है, उसे
आइडेंटिफाई कीजिए और सबसे पहला इंपॉर्टेंस किसे देना है उससे भी डिसाइड करना होता है। तो ऑलवेज एवरी डे हम लोग यही सोचते हैं, जैसे आप सुबह उठते हैं, यार नहीं सबसे पहले मुझे कॉलेज जाना है, स्टडी करना है, मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके बाद जैसे मम्मी बोलती है बेटा खाना खा ले, तो गुड बच्चा होगा वो बोलेगा मम्मी मैं बाद में खाऊंगा पहले पढ़ाई करूंगा। और एक आध ऐसा होगा तो बोलेगा नहीं पहले खाऊंगा बाद में देखूंगा, हो जाएगा ना, ऐसे ही जूम पे तो है ना। तो इसमें फर्क है, प्रायोरिटी। गॉट इट? Yes, ma'am. प्रोजेक्ट डिजाइन डेवलपमेंट। व्हाट इज प्रोजेक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट? सो यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव, उसका डिजाइन, डेफिनेशन, सो ये दिया हुआ है। स्कोप निकालना है, प्रोजेक्ट के बारे में सोचना है कि स्कोप्स किसे देना है, क्वालिटी क्या होनी चाहिए, टेक्निकल इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल पर्सन तो लगते ही है मैनेजरियल लेवल पे। सो प्लानिंग फॉर रिसोर्सेस में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट। ह्यूमन, आपके पास पर्सन होने चाहिए काम करने के लिए, क्योंकि अकेला बंदा नहीं करता। हम लोग मशीन नहीं है कि उसको इंस्ट्रक्शंस दे दिए पटाख से वो निकल के आ गया, उसको भी हमें सेट करना होता है, मशीन्स को भी, है ना, तभी वो होता है। एटीएम सेट किया हुआ है, राइट? जब उसमें पैसे नहीं रहते तो आप सर पटक लो, पैसे नहीं निकलेंगे, वो सीधा बोलता है सॉरी, राइट? उनकी जो भी इंस्ट्रक्शंस है एवरी मशीन का अलग अलग होता है, तो वो सीधा आपको मैसेज देती है, वो भी उसमें सेट किया होता है, राइट? सो अगर आप मतलब प्रोजेक्ट में काम करते हो तो सबसे पहले आपके पास रिसोर्स होने चाहिए ह्यूमन, आपके पास टेक्निकल पर्सन, मैनेजर लेवल, गुड स्टाफ, गुड टीम, एडवांस मतलब टीम आपके पास होनी चाहिए कि अगर किसी दिन कोई काम नहीं हुआ तो वो बंदा आपका। So human resource planning is most important, right? Time and resource allocation. Second है कि आपने जो भी ह्यूमन हायर किए हैं उनका काम टाइम पे ही होना चाहिए। आपने 10 से 6 का टाइम रखा है तो 10 से 6 में ही उनका पूरा काम कंप्लीट होना चाहिए। जो भी डाटा आपको चाहिए उनसे वो आज ही के आज मिलके अकाउंट्स में, बुक्स में, सभी जगह जाना चाहिए, सारी डॉक्यूमेंट्स फाइल में हो जानी चाहिए। डेली का डेली वर्क, तभी तो आपका प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट होगा। फाइनेंशियल प्लानिंग, अगर टुमारो का पेमेंट है तो आज ही प्लानिंग करके अप्रूवल लेके उसको रिलीज कर देना है, ताकि दूसरे दिन आप आओगे तो वेट नहीं करना चाहिए, फटाफट फटाफट वो काम हो जाना चाहिए। कॉस्ट एस्टिमेशन एंड बजटिंग, इट्स डिपेंड ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग, इज डिपेंड ऑन कॉस्ट एस्टिमेशन एंड बजटिंग। व्हाटएवर द बजट यू आर submitted in front of the management, same as it is followed all others, all departments. अगर उसमें corrections भी करना है तो you need to take an approval of that authority. Okay, so all things going on this, हर चीज का authority होता है, हर चीज का approval लगता है प्रोजेक्ट में, आप अपने मन से नहीं कर सकते। लॉजिस्टिक प्लानिंग, लॉजिस्टिक प्लानिंग आपको करना है, कॉन्ट्रैक्टर कौन है, कितने सप्लायर्स है, किन किन से आपको मटेरियल लेना है, कौन किसके साथ निगोशिएशन करना है, किसका कॉस्ट ज्यादा है, किसका कम है, किसका क्वालिटी अच्छा है, एवरीथिंग यू हैव टू डिसाइड बिफोर प्लानिंग ऑफ प्रोजेक्ट एंड कॉन्टैक्ट सप्लायर्स एंड क्रिएट प्रोक्यूरमेंट प्लान। ओके, उनके साथ बैठ के, उनके साथ कम्युनिकेट करके, उनके साथ निगोशिएट करके आपको सारे प्लान्स बनाने हैं कि मुझे ये मशीनरी चाहिए, ये मशीनरी मुझे कब तक मिलेगी, कब तक आएगी, क्या प्राइस है, कितना कॉस्ट रिडक्शन होता है, इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी एबिलिटी क्या है। एवरीथिंग यू हैव टू डिसाइड बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट, एंड दैट इज द प्रोजेक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। आप क्या कर रहे हो, प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हो, मैन पावर हायर करके, टाइम के साथ उनको असाइनमेंट देके, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक अकाउंट का बंदा रख दिया, एक अकाउंटेंट का क्या काम है, वहां पे तो आपको 4-5 लगेंगे। एक तो टैक्स कैलकुलेशन के लिए लगेगा, एक तो कॉस्ट एंड MIS बजटिंग के लिए लगेगा, एक तो डाटा एंट्री के लिए ही लगेगा। उसके बाद जो भी बिल आएंगे वो दिन भर में सारे बिल्स की एंट्री करेगा, परचेस की, सेल की, राइट। तो इस तरह से आपको 4 से 5 बंदे उसमें लगेंगे। HR में, फाइनेंस में, मार्केटिंग करने के लिए आपको बहुत सारे बंदे लगेंगे, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है ना। सो दैट इज द thing you have to design before start your project. Next, plan for implementation. Then you start the plan for implementation, plan for piloting, testing. Okay, then scale up, plan for tracking, budget and work plan,
and plan for risks and adaptable changes, right? So टेस्टिंग, जैसे मशीनरी आपने इंस्टॉल कर ली तो उसका टेस्टिंग करना पड़ता है कि सही चल रही है कि नहीं, एक एक, क्योंकि नई नई मशीनरी को एकदम स्टार्टिंग में आप स्टार्ट नहीं कर सकते, उसको दिन में लाने के लिए कम से कम 15-20 दिन लग जाते हैं, है ना, डिपेंड ऑन साइज एंड वो। अगर बड़ी बड़ी मशीनरीज है तो उसको रूटीन में लाने के लिए एक एक घंटा कंटिन्यू चला चला के देखना होता है उसमें, और उसके बाद उसका स्केल अप निकालते हैं कि ये एक घंटे में कितना लगा, उसका इलेक्ट्रिसिटी कितना जला, कितना ये निकला, एवरीथिंग कैलकुलेट करना होता है। प्लान फॉर ट्रैकिंग बजट एंड वर्क प्लान, आपका जो बजट है उसका प्लान आपने बना के रखा है कि एवरी डे आप ये बजट के हिसाब से वर्क का प्लान करोगे, इतना ही कैश आपको रोज देना है, अगर कम ज्यादा होता है तो उसे एडजस्ट करना है। तो वर्क प्लान भी, आज ये काम कंप्लीट हो गया, इसका काम खत्म हो गया, चलो दूसरे दिन इसको दे दिया, तीसरे दिन इसको दे दिया। सो दैट इज द ट्रैकिंग ऑफ बजटिंग प्लान। आपको मतलब ट्रैक करना है, क्रॉस चेक करना है कि बजट के हिसाब से ही वर्क और प्लान है वो हो रहा है कि नहीं। प्लान फॉर रिस्क एंड अडेप्टेबल चेंजेस, रिस्क अगर आप लेते हो किसी काम की तो उसमें क्या चेंजेस हुए हैं वो भी आपको नोट डाउन करना है, वो भी आपको सबमिट करना है, रिपोर्ट पे लिखना है। गॉट इट? समझ में आया कि नहीं? किसी को कोई डाउट है? Yes, किसी ma'am. को पूछना है रिगार्डिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? Okay, so tomorrow also we have a lecture, maybe. Just a second. मैंने आप लोगों को बोला था कि आप कुछ प्रोजेक्ट या प्लान बनाइए, किसी ने बनाया क्या? नहीं बनाया किसी ने भी? कल मॉर्निंग में हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, बाकी का जो है हम कल स्टार्ट करते हैं। ओके, सो टुडे वी हैव फिनिश्ड हियर and tomorrow morning see you again and fulfill the unit. Okay? Okay, ma'am. Thank you. Yeah. Anyone want to ask any questions? No? Okay. सबके प्रोजेक्ट्स, जिनके भी मुझे मेरे पास प्रोजेक्ट्स आए थे, मैंने उनका सब मेल कर दिए हैं। आप लोग हार्ड कॉपी लेकर सर से एक बार चेक कर लीजिए मेरा काम हो गया है। और बहुत सारे लोगों ने गाइड, एज अ गाइड मेरा नाम लिखा है, तो मेरा नहीं आएगा, जिनके जिनके जो जो मेंटर्स है उनका ही नाम आप लिखिए, ठीक है? Okay, ma'am. Yes. So bye bye, take care, see you tomorrow.